اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بات مانو اللہ کی اور بات مانو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے حکم دینے کا ادھیکار رکھتے ہو۔ پھر اگر تمہارے بیچ کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم حقیقت میں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، کام کرنے کا یہی ایک صحیح طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے۔ اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف اتاری گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم میں سے پہلے اتاری گئی تھی، مگر چاہتے ہیں کہ اپنے معاملوں کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف جائیں، حالانکہ انہیں طاغوت سے انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر سیدھے راستے سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ یہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آ پڑتی ہے، اس وقت یہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری نیت تو یہی تھی کہ دونوں گروہوں میں سے کسی طرح میل ملاپ ہو جائے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، انہیں جانے دو، انہیں سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی اجازت سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوتا کہ جب یہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتے، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اے نبی، تمہارے رب کی قسم یہ کبھی ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے آپس کے اختلافوں میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس کریں، بلکہ پوری طرح مان لیں۔ اگر ہم نے انہیں حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی آدمی اس پر عمل کرتے، حالانکہ جو نصیحت انہیں کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ اچھائی اور زیادہ ضماد کی وجہ بنتا، اور جب یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے بہت بڑا بدلہ دیتے اور انہیں سیدھا راستہ دکھاتے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبی اور سچے لوگ اور شہید اور اچھے لوگ۔ کیسے اچھے ہیں یہ ساتھی جو کسی کو ملے، یہ حقیقی مہربانی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مقابلے کے لیے ہر وقت تیار رہو، پھر جیسا موقع ہو الگ الگ ٹکڑیوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر۔ ہاں، تم میں کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے بھی چراتا ہے۔ اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا، اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہوتا تو کہتا ہے اور اس طرح کہتا ہے کہ مانو تمہارے اور اس کے بیچ محبت کا تو کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچ دے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا اسے ضرور ہم بڑا بدلہ دیں گے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں اور
अपनी तरफ से हमारा कोई हिमायती और मददगार पैदा कर दे। जिन लोगों ने ईमान का रास्ता अपनाया है वे अल्लाह की राह में लड़ते हैं, और जिन्होंने इनकार कुफ्र का रास्ता अपनाया है वे तागूत की राह में लड़ते हैं। तो शैतान के साथियों से लड़ो और यकीन जानो कि शैतान की चालें हकीकत में बहुत ही कमजोर हैं। तुमने उन लोगों को भी देखा जिसने कहा था कि अपने हाथ रोके रखो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। अब जो उन्हें लड़ाई का हुक्म दिया गया था तो उनमें से एक गिरोह का हाल ये है कि अल्लाह से ऐसे डर रहे हैं जैसे खुदा से डरना चाहिए। क्या कुछ इससे भी बढ़कर कहते हैं कि हमारे रब, यह हम पर लड़ाई का हुक्म क्यों लिख दिया? क्यों न हमें अभी कुछ और मोहलत दी? इनसे कह दो दुनिया की जिंदगी का सरमाया थोड़ा है और आखिरत खुदा से डरने वालों एक इंसान के लिए ज्यादा बेहतर है, और तुम पर जुल्म एक जर्रा बराबर भी न किया जाएगा। रही मौत तो जहाँ भी तुम हो हर हाल में तुम्हें आकर रहेगी, चाहे तुम किसी ही मजबूत इमारतों में हो। अगर इन्हें कोई फायदा पहुँचता है तो कहते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुँचता है तो कहते हैं कि ए नबी यह तुम्हारी वजह से है। कहो सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से है। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है? कोई बात इनकी समझ में नहीं आती। ए इंसान, तुझे जो भलाई भी हासिल होती है अल्लाह ही की मेहरबानी से होती है, और जो मुसीबत तुझ पर आती है वह तेरी अपनी कमाई और करतूत की वजह से है। ए नबी, हमने तुमको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और इस पर खुदा की गवाही काफी है। जिसने रसूल की फरमाबरदारी की उसने असल में खुदा की फरमाबरदारी की, और जो मुंह मोड़ गया तो बहरहाल हमने तुम्हें इन लोगों पर चौकीदार बनाकर तो नहीं भेजा है। वे मुंह पर कहते हैं कि हम फरमाबरदार हैं, मगर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो इनमें से एक गिरोह रातों को जमा होकर तुम्हारी बातों के खिलाफ मशवरे करता है। अल्लाह इनकी ये सारी कानाफूसी लिख रहा है। तुम इनकी परवाह ना करो और अल्लाह पर भरोसा रखो, वही भरोसे के लिए काफी है। क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता इसमें कुछ बेमेल बयान पाया जाता। ये लोग जहाँ कोई इत्मीनान दिलाने वाली या खौफनाक खबर सुन पाते हैं लेकर फैला देते हैं। हालांकि अगर ये उसे रसूल और अपनी जमात के जिम्मेदार लोगों तक पहुँचाए तो यह बात ऐसे लोगों की जानकारी में आ जाए जो इनके बीच इस बात की शहालियत रखते हैं कि इससे सही नतीजा निकल सके। तुम लोगों पर अल्लाह की मेहरबानी और रहमत न होती तो तुम्हारी कमजोरियां ऐसी थी कि कुछ गिने चुने थोड़े से लोगों के सिवा तुम सब शैतान के पीछे लग गए होते। तो ए नबी, तुम अल्लाह की राह में लड़ो। तुम अपने आप के सिवा किसी और के लिए जिम्मेदार नहीं हो। अलबत्ता ईमान वालों को लड़ने के लिए उकसाओ। नामुमकिन नहीं कि अल्लाह इनकार करने वालों का जोर तोड़ दे। अल्लाह का जोर सबसे ज्यादा जबरदस्त और उसकी सजा सबसे ज्यादा सख्त है। जो भलाई की सिफारिश करेगा वह उसमें से हिस्सा पाएगा, और जो बुराई की सिफारिश करेगा वह उसमें से हिस्सा पाएगा, और अल्लाह हर चीज पर नजर रखने वाला है। और जब कोई एहतराम के साथ तुम्हारे सलाम करे तो उसको उससे ज्यादा अच्छे तरीके से जवाब दो, या कम से कम उसी तरह। अल्लाह हर चीज का हिसाब लिखने वाला है। अल्लाह वह है जिसके सिवा कोई खुदा नहीं है। वह तुम सबको उस कयामत के दिन जमा करेगा जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है? फिर यह तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के बारे में तुम्हारे बीच दो राय पाई जाती हैं। हालांकि जो बुराइयां उन्होंने कमाई है उनकी वजह से अल्लाह उन्हें उल्टा कर चुका है। क्या तुम चाहते हो कि जिसे अल्लाह ने सीधे रास्ते पर नहीं लगाया उसे तुम रास्ते से लगा दो? हालांकि जिसको अल्लाह ने रास्ते से भटका दिया उसके
उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा सकते। वे तो यह चाहते हैं कि जिस पर वे खुद कुफ्र में पड़े हुए हैं उसी तरह तुम भी कुफ्र में पड़ जाओ ताकि तुम और वे सब बराबर हो जाएं। तो उनमें से किसी को अपना दोस्त ना बनाओ जब तक कि वे अल्लाह की राह में घर बार छोड़कर ना आ जाएं। और अगर वे घर बार छोड़ने हिजरत से रुके रहें तो जहां पाओ उन्हें पकड़ो और कत्ल करो और उनमें से किसी को अपना दोस्त और मददगार ना बनाओ। अलबत्ता भी मुनाफिक इस हुक्म से अलग हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिले हैं जिसके साथ तुम्हारा समझौता है। इसी तरह उन मुनाफिकों का मामला भी इससे अलग है जो तुम्हारे पास आते हैं और लड़ाई से उनका मन दुखी हो चुका है, न तुमसे लड़ना चाहते हैं न अपनी कौम से। अल्लाह चाहता तो उनको तुम पर मुसल्लत कर देता और वे भी तुमसे लड़ते। तो अगर वे तुमसे किनारा खींच लें और लड़ने से रुके रहें और तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ बढ़ाए तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए उन पर हाथ बढ़ाने की कोई राह नहीं रखी है। यह कुरान शरीफ की सूरह अन-निसा का 60 आयत से 90 आयत तक का तर्जुमा है। आगे की तर्जुमे की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज।